Hello friends. So today we will see about lesson number 3. Okay. Standard 4th subject is EVS 2. Okay, so before this lesson, in lesson number 2 we have seen about information about so many sons. Shri Chakradhar Swami was there, Ram Samarth Ramdas, Sant Tukaram, Sant Jnaneshwar, okay, and so many. Okay, so in that second lesson we have learned ke all the sons they taught about the people, they taught to people about equality. After that they taught the people about the forgiveness, then about the love and all. Okay, so in third lesson देखो यहाँ से जो है वो our real story will start. Okay, so see page number 8. Okay, if you have textbook, see page number 8 and see the lesson name is Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. Okay, so first of all we will see in that time so many famous families were there, that we will see. Okay, and why only the Bhosle family was the famous family, so we will see here. Okay, so see in this first point is what here, period of unrest. Okay, so period of unrest मतलब क्या, in that time also. Now in lesson number 1 we have seen that before Shivaji Maharaj the people were very unhappy, they were very sad and all. Okay, but see here I have written some shortcuts note for you. Okay, see here, the first point is period of unrest means what. See in that time आफ्टर द संत द पीरियड वॉज अनरेस्ट पीरियड. ठीक है, मतलब रेस्ट नहीं था, पीस नहीं था. ठीक है, आफ्टर दैट वाई द पीरियड वॉज अनरेस्ट, बिकॉज द आदिल शाह एंड निज़ाम शाह बोथ वर फाइटिंग कंटिन्यूसली. इन लेसन नंबर 1 ऑल्सो वी हैव सीन कि बिफोर शिवाजी महाराज ये आदिल शाह एंड निज़ाम शाह दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर to capture Maharashtra. Understand? So that's why the people were unhappy and sad. And after the son's time, again the Adil Shah and Nizam Shah both were fighting with each other. Understand? But see, they have made their own army. Okay, which army is there? Army of Maratha Sardars. Okay, so both are having the army of Maratha Sardar. So who was the Maratha Sardar? Who were the Maratha Sardar? What they did and all. Okay, and why they are famous. ठीक है, and why only the Bhosle family is very famous. So that we will see in this lesson. Okay, so the Maratha Sardars, they were very brave, powerful and loyal of their kings. Okay, see as shown here, I have written here okay, how were the Maratha Sardars. So they were very brave, powerful and loyal of their kings. Understand? And they are fearless. They are what? Fearless. मतलब उनको कुछ डर नहीं था कि मतलब हम अभी कैसे फाइट करें, क्या करें एंड ऑल. वो जो बहुत लॉयल थे उनके किंग्स के. ठीक है, और मतलब जो ऑलवेज दे आर रेडी टू डाई फॉर द किंग्स. अंडरस्टैंड? सो ऐसे थे मराठा सरदार्स. ओके, बट सी हियर, see kids, I have underlined here some important points. You also do it in your textbook, because see in exam questions are coming in only मतलब textual questions are not only जो exercise के questions है they are not they are coming, but उनको छोड़ के भी जो है वो बाकी textual questions are also coming in exam. Understand? That's why I have underlined here some important points. So now we have seen that the Maratha Sardars were very brave, powerful and loyal of their kings. They were fearless. Okay, and see what happened. All the Maratha Sardar had their own private army. यानी हर एक की जो है वो एक प्राइवेट आर्मी रहती थी. ठीक है, इफ़ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, मतलब ऐसे सरदार जब सुल्तान के पास जाते थे. ठीक है, और अगर सुल्तान गेव हिम द एम्प्लॉयमेंट, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कॉन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम. ठीक है, मतलब क्या रहता था, जो मराठा सरदार थे वो क्या करते थे, सुल्तान के पास जाते थे, और अगर सुल्तान को उनकी टीम अगर पसंद आती थी तो वो सुल्तान क्या करते थे,
अपनी टीम में उनको लेते थे एंड दे आर गिविंग द जागीर टू देयर सरदार्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे वर थिंकिंग के सच सी सरदार हु रिसीव्ड सच अ जागीर कंसिडर हिमसेल्फ अ राजा, मीन्स व्हाट कि जो भी सरदार को इतनी सारी जागीर अगर सुल्तान को ही देता था, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या समझते थे कि वी आर अ राजा नाउ। अंडरस्टैंड, राजा मतलब उस टाइम पे राजा यानी सबसे रिच, ओके, अंडरस्टैंड। देन सी देर वर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर, मतलब ये जो आदिल शाह है, आदिल शाह और निज़ाम शाह, इन देयर टीम ऑल्सो सो मेनी मराठा सरदार्स वर देयर, ठीक है। वाई बिकॉज वाई दे टुक देम बिकॉज द मराठा सरदार्स आर वेरी brave, powerful and loyal, that's why they took in their team also some Maratha Sardars, understand. Then after that, see, in that time so many famous families were there like Jadhav of Sindakhed, Nimbalkars of Paltan, Ghorpades of Mudhol, Mores of Zavli, Yadavs of Devgiri, and last but not least is the Bhosles of Veral, ठीक है। तो दीज वर द फेमस फैमिलीज, 1 2 3 4 5 6 फैमिलीज वर वेरी फेमस, बट सबसे इनमें से भी सबसे 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 ज़्यादा जो फेमस थी फैमिली, वो विच फैमिली, भोसले फैमिली वर देयर, अंडरस्टैंड। एंड दे लिव इन वेरल विलेज, ओके, द भोसले फैमिली they were living in वेरल विलेज, अंडरस्टैंड। सी आई हैव रिटन हियर ऑल्सो कि सबसे फेमस फैमिली जो है वो विच फैमिली, भोसले फैमिली, दैट्स वाई हमारे लेसन का नाम भी जो वही है ना, मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेज, अंडरस्टैंड। तो सबसे फेमस फैमिली जो है वो भोसले फैमिली वॉज देयर। देन आफ्टर दैट वी हैव टू सीन अबाउट के जीजाबाई, हु इज जीजाबाई, do you know who is Jijabai? Shivaji's mother, okay, the mother of the mother of Shivaji was Jijabai, okay, and who was the father of Jijabai? See here, लखूजी राव जाधव। अभी और एक यहाँ पे न्यू पर्सन हमारी स्टोरी में ऐड हुआ है, वो कौन है, लखूजी राव जाधव। तो हु वॉज लखूजी राव जाधव, फादर ऑफ जीजाबाई, ओके, एंड ही वॉज फ्रॉम विच फैमिली, जाधव फैमिली, अंडरस्टैंड। तो जीजाबाई भी जो है वो ऐसे कोई भी फैमिली में से नहीं है, वो भी जो है एक फेमस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जीजाबाई, अंडरस्टूड। सो जीजाबाई शी वॉज फ्रॉम जाधव फैमिली, अंडरस्टूड, एंड हिज फादर नेम वॉज लखूजी राव जाधव, अंडरस्टैंड। सी देन हियर so many famous families were there, then Lakhuji Rao was the father of Jijabai, understood. Now the next point we have to see about tradition of valor, okay, means what, see, all the sardars, all the Maratha sardars were very brave and all, ठीक है, but many of them were sworn enemies of one another, मतलब क्या कि उस टाइम पे भी जो है वो मतलब सबके जो मतलब मराठा सरदार जो थे उसमें भी जो है बहुत सारे एक दूसरे के एनिमीज थे, ठीक है। दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनिट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल, मतलब उन्होंने कभी ऐसे सोचे नहीं कि हम एक ही यूनिटी बनकर जो है वो सबसे लड़े या कुछ करे, नहीं, वो ऐसे नहीं सोचते थे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अमंग द फेमस फैमिलीज द भोसले ऑफ वेरल शोड अ ग्रेट बेवरी एंड एंटरप्राइज, ठीक है, मतलब इतने सारे फैमिलीज थे फेमस, बट किसी ने भी इतना नहीं सोचा, ठीक है। बट एक जो फैमिली थी भोसले फैमिली, उन्होंने जो है वो लोगों के बारे में सोचा, ठीक है, और वो जो है वो आपस में जो है वो फ्रेंड हो गए, ठीक है, जो भोसले फैमिली के जो सरदार्स थे वो लोग, अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, okay, so it was about 400 years ago, the temple of Grushneshwar near the Veral village, okay, this Grushneshwar temple was where it is near the Veral village, अभी वेरल विलेज में कौन थे, भोसले फैमिलीज थे, ठीक है, where it was made caves was falling, see, Grushneshwar near the Veral caves was falling to pieces, ठीक है। सी आई हैव रिटर्न हियर सो some points,
See students, so the condition of that Krishneshwar temple was very bad. Okay, why? Because it was very old and all, and so many cracks were made in the wall also. Okay, and see, so many devotees were coming in that temple, but nobody was thinking about to restore. ओके अबाउट रिपेयरिंग, मतलब कोई भी नहीं सोचता था. बहुत सारे लोग आते थे, जाते थे, पूजा करते थे, बट कोई भी उसके रिपेयरिंग के बारे में नहीं सोचता था. ठीक है. एंड इन दैट टेम्पल विच गॉड वॉज देयर? शिवा गॉड वॉज देयर. Okay, now you know who is Shiva god. Okay, so in that temple which god was there? Shiva god. Understand? So one person was there. See in your textbook, page number 8 only. I am showing you. See this point कि a great devotee of Shiva visited the temple regularly. मतलब एक person था, ठीक है, वो daily he is coming in that temple and he was a great devotee of Vitthal, Shiva god. Okay, he was a great devotee of Shiva god. So what he did, he would put the flowers and bale on the lingam and express his innermost thoughts to the god. मतलब वो डेली आते थे और जो फ्लावर्स लेके आते थे और वहाँ पे जो प्रेयर करते थे, अपने थॉट्स जो है वो गॉड के साथ शेयर करते थे. ओके, ही कैरिड आउट द एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल एंड रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन. यानी क्या, वो जो एक बंदा था, वो जो एक पर्सन था, उसने क्या किया? व्हाट ही डिड, ही डिसाइड टू रिस्टोर द टेम्पल ऑफ कृष्णेश्वर. ओके, सो he also made the arrangements for the proper maintenance of the temple. ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको रिस्टोर किया, उसको रिपेयर किया और फिर ऐसे ही छोड़ दिए. नहीं, प्रॉपरली जो है वो उसका मेंटेनेंस करते थे. ठीक है, उसको मेंटेन करके रखे थे टेम्पल को. Now there were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of Krishneshwar was restored. Okay, restored मीन्स वॉट के जब उन्होंने सब उसको रिपेयर किया तो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द टेम्पल लाइट्स वर देयर. ओके, एंड इट वॉज इन देम एकदम ऑसम कंडीशन में उन्होंने किए. ठीक है, तो हु वॉज दैट पर्सन who did, who was this devotee who did all this? And see, who was that person who restored the temple of Krishneshwar? So the person was Maloji Raje Bhosle. Okay, so Bhosle family के ये थे Maloji Raje. Understand? तो who restored the Krishneshwar temple? Maloji Raje. Understands? Who restored the temple? Maloji Raje. Understand? Now see this, students, page number 9. Who is this? This is the picture of Shahaji Raje. Now do you know who was Shahaji Raje? Father of Shivaji Maharaj. Understand? Who was the father of Shivaji Maharaj? Shahaji Raje. And who was the mother of Shivaji Maharaj? Jijabai. Understood? Now we will move to the next point. Okay, see now page number 10. The next point is the Bhosles of Veral. Obviously I told you in first only कि जो भोसले family थी, this भोसले family was from Veral village. Okay, so we will see now कि उन्होंने जो है वो क्या किए थे, कौन थे, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो who was Maloji Raje and all, we will see this only. Okay, see I have made here some points for you. Okay, see now you are thinking कि who was Maloji Raje, why he restored the temple of Krishneshwar and all. ठीक है, तो Maloji Raje was the Patil of Veral village. Okay, Maloji Raje was the Patil of Veral village. That's why he restored the temple of Krishneshwar. Understand? And the biggest thing is what? कि he was the great devotee of Shiva god. Okay, so that's why he restored the temple of Krishneshwar. Understand? Then see कि Babaji Raje was there. So who was Babaji Raje? See, Babaji Raje had
two sons. First is मालोजी राजे एंड सेकंड इज विट्ठोजी राजे. ओके, तो अभी आपको समझ में आया कि मालोजी राजे कौन थे. तो ही वॉज द सन ऑफ बाबाजी राजे. ओके, उनके फादर कौन थे मालोजी राजे के? बाबाजी राजे. तो बाबाजी राजे हैड टू सन्स, मालोजी राजे एंड विट्ठोजी राजे. बोथ brothers were very brave and powerful because their father was also very powerful. समझ में आया. पहले जो है वो बाबाजी राजे पाटिल थे, फिर उसके बाद जो है वो कौन बने पाटिल? मालोजी राजे. सो बोथ ब्रदर्स वर वेरी ब्रेव एंड पावरफुल. अंडरस्टैंड. अभी देखो आफ्टर दैट क्या होता है ये स्टोरी में. अभी हमारी यहाँ से स्टोरी रियल स्टार्ट होती है कि उस टाइम पे जो है वो क्या होता है, द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली दे अटैक्ड ऑन निज़ाम शाही. ठीक है, अभी देखो ये जो मालोजी राजे थे, मालोजी राजे ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. बाबाजी राजे वॉज ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. तो ऑब्वियसली उनके सन भी तो वहीं पे काम करेंगे, है ना. तो ये जो दोनों है वो किसके टीम में थे? निज़ाम शाह की टीम में थे. किसके टीम में थे? निज़ाम शाह के. अभी देखो कैसे वो निज़ाम शाह की टीम में आए वो हम देखेंगे. तो द मुगल एम्परर अटैक्ड ऑन निज़ाम शाही. ठीक है, देन क्या होता है देखो. तो निज़ाम शाह वॉज इन वेरी टेंस. ठीक है, मतलब निज़ाम शाह को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, वो बहुत टेंशन में आ जाता है. ही वॉज वेरी वरीड कि ना व्हाट आई डू. ही वॉज थिंकिंग. सो हिज वज़ीर वॉज द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाह, मलिक अंबर. ओके, हु वॉज द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाह? मलिक अंबर. तो मलिक अंबर told to Nizam Shah कि we have two great person. Who were they? Maloji Raje and Vithoji Raje. So we can call them in our team. We can take them in our team. Who told? Malik Ambar told to Nizam Shah. Understand. Then Nizam Shah what he said to Malik Ambar के ठीक है, ओके चलो, आई विल कॉल देम इन माई टीम, इन आर टीम. ठीक है, तो मलिक अंबर सेड टू निज़ाम शाह. दैट्स वाई निज़ाम शाह गो एंड मेट विथ मालोजी राजे एंड विट्ठोजी राजे. okay, and he told them, if you will come in my team, I will give you the Jagir of Pune and Supe. Understand? Nizam Shah told to Malik Ambar and Vithoji Raje कि if you will come in my team, I will give you the Jagir of Pune and Supe. पूना अपना पूना. ठीक है, तो ये पुणे एंड सूपे जो किसके अंडर में था पहले? निज़ाम शाह के अंडर में था. तो व्हेन ही ऑफर्ड टू मालोजी राजे एंड विट्ठोजी, तो ही टोल्ड देम कि इफ़ यू विल कम इन माय टीम, आई विल गिव यू द जागीर ऑफ पुणे एंड सूपे. अंडरस्टैंड. फिर क्या हो जाता है? द भोसले फैमिली बिकम वेरी रिच एंड पावरफुल. ठीक है, फिर जब उनको जागीर मिलती है, अभी पूना कितना बड़ा है सिटी, है ना. पूना कितना बड़ा है, अभी तो कितना डेवलप हुआ है पूना, तो पहले भी उतना ही बड़ा था. ठीक है, बट इतने फैसिलिटीज़ एंड ऑल नहीं थे. ठीक है, तो जब उनके ये टीम में आए पुणे एंड सूपे, तो भोसले फैमिली बिकम वेरी रिच एंड पावरफुल. अंडरस्टैंड. देन लैटर आफ्टर दैट व्हाट हैपन, मालोजी राजे ही गॉट मैरिड विथ उमाबाई. अंडरस्टैंड. मतलब जब बड़े हो गए मालोजी राजे, विट्ठोजी राजे, तो मालोजी राजे ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो शादी की. ठीक है, ही गॉट मैरिड विथ उमाबाई. तो हु वॉज द वाइफ ऑफ मालोजी राजे? उमाबाई. सी हियर, हाँ, मालोजी राजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हियर. ओके, तो मालोजी राजे गॉट मैरिड विथ उमाबाई एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम द फेमस फैमिली ऑफ निम्बालकर. Understood? She was also from which family? Nimbalkar family. After that, after few years, what happened? Maloji Raje had two sons. Who were they? Shahaji and Sharif जी. ठीक है, कौन उनके फिर उनको कितने सन थे? टू सन. मालोजी राजे हैड टू सन, शाहजी एंड शरीफ जी. अभी शाहजी कौन? Who was Shahaji Raje? Yes, father of Shivaji Maharaj. Father of Shivaji Maharaj. Understand?
तो हु इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ मालोजी, हु इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ शिवाजी महाराज? मालोजी राजे। तो शिवाजी महाराज के दादा कौन हुए? ग्रैंड फादर कौन हुए? मालोजी राजे। अंडरस्टैंड? एंड हु वॉज द अंकल ऑफ शिवाजी महाराज? शरीफ जी। अंडरस्टैंड? तो शाहजी वॉज द फादर ऑफ शिवाजी महाराज and Sharif ji was the uncle of Shivaji Maharaj and the grandfather of Shivaji Maharaj is Maloji Raje. Understand? Then after that what happened? See, in one battle Maloji Raje was killed. Okay, and the battle was of इंदापुर. अंडरस्टैंड? मतलब इंदापुर में जो एक बैटल हुई उसमें जो है वो मालोजी राजे की डेथ हो गई. ठीक है, तो आफ्टर दैट उस टाइम पे जो है वो शाहजी राजे वॉज ओनली 5 years के थे. देखते हम यहाँ पे, देखो, सी हियर पेज नंबर 10, सी दिस पैराग्राफ नाउ के शाहजी मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर. ठीक है, एट दैट टाइम शाहजी राजे वॉज ओनली ही वॉज ओनली 5 years ओल्ड, यानी कितने छोटे थे और उनके फादर की डेथ हो गई थी. फिर उसके बाद उनको किसने देखा? विट्ठोजी राजे. ओके, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर. लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी. ठीक है, मतलब बाद में क्या होता है, ये जो विट्ठोजी राजे, सॉरी, जो शरीफ जी है वो क्या बोलते हैं शाहजी राजे को कि नाउ यू गेट मैरिड विथ समवन. ठीक है, तो शाहजी राजे बोलते हैं कि ओके ठीक है. ठीक है, तो फिर वो जो है वो शाहजी राजे गॉट मैरिड विथ जीजाबाई. पहले क्या होता है, देखो, शरीफ जी जो है वो लखूजी राव जाधव के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि बाबा तुम मतलब आपकी जो डॉटर है वो हमारे शरीफ जी को, सॉरी, शाहजी को देंगे क्या आप? ठीक है, आप रेडी है कि आपको शाहजी पसंद है क्या? ऐसे वो बोलते हैं लखूजी राव जाधव को. तो लखूजी राव जाधव जो है वो क्या बोलते हैं? येस, आई लाइक योर ब्रदर, सो करते हैं शादी उनकी. ठीक है, ऐसे बोलते हैं. तो फिर क्या होता है, देखो, शाहजी राजे गॉट मैरिड विथ जीजाबाई. अंडरस्टैंड? अभी शाहजी राजे मीन्स हु? फादर ऑफ शिवाजी महाराज and mother of Shivaji Maharaj is Jijabai. Understand? And Jijabai, she is also from which family? Jadhav family. Understand? फिर क्या हो जाता है, लेटर, देखो यहाँ पे, ये जो लखूजी राव वॉज ऑल्सो वेरी ब्रेव एंड द वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह एंड ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन and he commanded the great respect and honor at the court of निज़ाम शाह. यानी निज़ाम शाह, ये जो लखूजी राव जाधव was working in the court of निज़ाम शाह. ठीक है, बट उनकी वहाँ पे बहुत इज्जत थी. and then after that he celebrate the wedding of शाहजी राजे and जीजाबाई with a great pomp and then जीजाबाई became the fortune of the भोसले family. Understand? समझ में आया आप लोगों को इतना कि शाहजी राजे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हु रिस्टोर्ड द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर? मालोजी राजे. ओके, सी आई एम शोइंग यू हियर वंस अगेन.